Okay. So exercise 1C, the concept is that if you have एक fraction में numerator by denominator, okay, numerator denominator, and denominator is just 2 raised to m into 5. Basically, it is just the powers of 2 and 5. Then this, when you divide this will terminate. So we did this last time. Okay, fine. Decimal will terminate. Okay, fine. If it is not this, if it is not 2 to the power 2 and 5, it is something extra, that will not terminate. So even if something extra, if there are basically not this condition, it will not terminate. For example, देखो example सुनो ऐसे तो थोड़ा. First I'm telling the statement again. The statement is if it is a fraction and it is in the form of numerator by denominator, and the denominator is the form 2 raised to m into 5 raised to n. Basically, the denominator should have powers of 2 and 5 only. Okay. Then it is there should be either only 2 or only 5 or only 2 and 5. Okay. Then it will terminate. Terminate means end. If it is not the case, then it will not end. For example, find 3 by 4. 3 by 4 में क्या होता है? 3 by 4 is actually 3 by 2 square. खत्म होगा कि नहीं होगा? इसमें सिर्फ 2 और 5 है क्या? Yes or no? So into 5 by 5 करना? नहीं, इसको अच्छा नहीं ऐसे into 5 by या देखो क्वेश्चन सिंपल है. इसमें क्या सिर्फ 2 और 5 है? Yes or no? No. No, No, two is there. भाई only 2 square is there. नहीं, I क्वेश्चन mean, yeah, 2 है. लैंग्वेज सुनो ध्यान से. दोनों होना जरूरी नहीं है. जो Okay. भी क्या वो इसमें 2 और 5 में ही सब कुछ है कि नहीं? हाँ सर. नीचे वाला अगर 2 और 5 से काम चला ले रहा है, ऐसे समझो, ठीक है. अगर वो 2 और 5 से काम चला ले रहा है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा. क्या ये 2 और 5 से काम चला ले रहा है? Yes sir. यस, टर्मिनेट हो जाएगा. ओके. तो दिस इज एक्चुअली 3 by 4 is 0.75. You know, right? If you Yeah. figure it, you'll get. अब जैसे 3 by 28, अब बोलो क्या होगा? Prime factors. बोलो तो प्राइम फैक्टर्स कितना आएगा? 1 से. So 2 square into 7. यस. क्या ये सिर्फ 2 और 5 से काम चला रहा है? No sir. No, sir. Yes sir. नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, अंडरस्टूड. Yeah. अभी अब चलो क्वेश्चन नंबर, चलो ये आर्य जो है ना, ये एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो और फर्स्ट सेकंड बोलो, आंसर बोलो फटाफट. सॉल्यूशन बोलो, आंसर नहीं, मतलब कैसे करेंगे वो बोलो. आज ही बोलना है. क्वेश्चन मिल गया आर्या? हेलो. Sorry, sir, I couldn't hear. Your voice is breaking. What are you saying? I'm saying open exercise 1C, start explaining question number 1. Read question number 1 and start explaining from RS. So the first one is a terminating decimal because its factors are only in terms of 2 and 5. और क्वेश्चन भी पढ़ना है, मतलब उसका कौन सा पार्ट पढ़ रही हो तुम? ठीक है. First part. अरे पूरा 23 बाई ऐसे पढ़ बोल. Okay, 23 by 2 cube into 5 square is a terminating decimal because its factors are 2 and 5 and Second, 24 by 125. It is a terminating decimal because 125 is a factor of 5, like only of 5. it's what? So it's a terminating decimal. No, it's 125 is what? So it's 5 cube. Okay, तो ऐसे बोलो, ठीक है. Third one. Okay, third one, 171 by 800. It is 1 second, sir. 800 कितना है बस वो बताओ. 800? Yeah. Prime factoration of 800. Prime factoration of 800 is what?
So wait. 2 नहीं, into रुको रुको रुको, उससे सिर्फ आर्य बोलेगी. So 1 second. So it will be so it's a terminating decimal. अरे 800 का मैंने पूछा, 800 का प्राइम फैक्टरेशन कितना है, आंसर नहीं पूछा मैंने. So it's 2 to the power 5 into 5 to the power 2 कैसे किया? by the वो वाला method, column वाला. ये वाला. Yeah. ठीक है, ओके. ऐसे भी कर सकते थे. ये 16 5 से 80 होता है ना, 16 into 5 से 80 and then into 10. 16 क्या 2 raised to 4, ये क्या 2, ये क्या 5 और ये क्या 2 into 5. तो ठीक है. Okay. Yes. Sir. ओके, नेक्स्ट 15. Sir. हाँ, यस यस, बोलो बोलो. 15 by 1600. Terminating decimal because it can be written as 16 and 200. 14. सही है, 16 into 100, वेरी गुड. फिर So 16 and 200. So it will just be 2 to the power of 4 into 2 to the. Wait. सही है, सही है. So 5 to the power of 2 into 2 to the power of 6. वेरी गुड. देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग. ठीक है, अभी इसके बाद के तीन, नंबर 4, नंबर 5 और नहीं, नंबर 5 और नंबर 6, Yes, sir. ये बताएगा आद्विक. सर 17 by 320 ये फिफ्थ वाला पार्ट है, तो 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऑनलाइन का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 to the power 6 into 5 to terminating. ओके. सिक्स्थ पार्ट. Sixth part is 19 by 3125. 3125 का प्राइम फैक्टर. सर इसका होगा 5 to the power 4, so it will be terminated. ठीक है, ओके. ध्रुवी, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 4 पार्ट्स. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 4 पार्ट्स. ओके. Okay. Question number 2. फर्स्ट The first part. फर्स्ट 4 पार्ट ध्रुवी एंड लास्ट 5 6 7 8 गर्वित. ओके, चलो Okay. start. So the first one will be a non-terminating because it has 3 in the prime factorization. Yeah, correct. The second one also will be non-terminating as it has 3. And the third one will also be non-terminating because it has 7. Correct. And the fourth one will be non-terminating because 35's prime factorization is 5 multiplied by 7. So it's going to be non-terminating as it has 7. Okay. ना 4 ना 3 12 ना 3 12. ओके. ऑलवेज सी, एक चीज और चेक करना होता है कि सपोज क्वेश्चन नंबर, कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे ना 2 और 5 के अलावा भी कुछ है. फॉर एग्जांपल इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 3 which is 129 by 2 square 5 cube 7 square. ओके. तो उसमें क्या होता है कि ऊपर भी जो 7 स्क्वायर है ना, नीचे वही प्रॉब्लम कर रहा है ना. तो ऊपर चेक कर लेना एक बार कि वो नंबर 7 स्क्वायर से डिविजिबल तो नहीं है, मतलब वहां पे 49 तो नहीं छुपा हुआ है एक. ओके. फॉर एग्जांपल अगर इस क्वेश्चन में ऊपर 119 की जगह 98 होता, अगर ऐसा होता, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है.
अगर ऐसा होता है 98 नहीं 49 इंटू 3 लिखो 49 इंटू 3 कितना था 49 इंटू 3 50 से एक कम तो 147 तो ये आएगा 147 आएगा मान लो ये क्वेश्चन होता है 147 बाई 2 स्क्वायर 5 क्यूब 7 स्क्वायर अब इसका आंसर पता है क्या होगा अब तुम डायरेक्टली मत बोल देना कि ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है Sir, we'll first remove 7 square. हाँ फर्स्ट रिमूव 7 स्क्वायर तो आएगा 3 बाई 2 स्क्वायर 5 क्यूब ये बचेगा ना इसका मतलब ये Yes, sir. क्या है ये एक्चुअली टर्मिनेट बिल्कुल सही तो लिख लो एग्जांपल सर एक्चुअली आज मैम ने बोला है कि आई वाज रॉन्ग और बोला है कि टेस्ट में प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैम को अभी कुछ और नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं मैम ने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 3 चैप्टर्स हैं वो तो आएंगे ही और बाकी का विद डिसाइड ठीक है देखते हैं हम कितना कर पाते हैं मैं तो ऑलमोस्ट हो चुका है गेस क्योंकि पॉलिनॉमियल भी डेड रियल नंबर्स अभी हो जाएगा एंड सिर्फ क्वाड्रेटिक बचेगा ओके ओके विल फिनिश ये इट ऑल इक्वेशन हो चुकी ठीक है अच्छा बाय द वे रियल नंबर में एक्सरसाइज 1D भी है क्या यस उसका भी फोटो भेज दो जरा ओके एवरीवन हैज गॉट चलो गर्वित कंटिन्यू Sir, so the second question, fifth part, it's 77 by 210. So 210 is 2 into 3 into 5. So it's non-terminating because it has 3 in it. Other than एक मिनट 2 into 3 into 5 है हाँ sir. तो 7 नहीं है इसमें देयर इज नो 7 मुझे दिख रहा है 7 3 से 21 7 फैक्टर होना चाहिए 77 210 का 7 तो फैक्टर होना ही चाहिए एक Oh yeah, sorry. फिर 7. So 7 is still. Sir, I'll just. Yeah, the factors are 7, 2, 3, and 5. ठीक है So it's non-terminating. Then the other one, sixth one, it's 32 by 147. So in that we have factors of 147, 7 square into 3. So it's and 3 and the numbers are not cutting 32 also, so it's non-terminating only. And in the eighth one, it's 343. The factors are 7 cube. The number is 29 by 343, and the factors of 343 are 7 cubes, so it's also not terminating. And in the eighth part, it's 64 by 455, and the factors are 5 into 91, so that's also not terminating. अच्छा एक चीज मुझे बता देना ये चैप्टर ये रियल नंबर से चैप्टर है ना Yes, sir. तुम्हारे बुक में तो एक्सरसाइज 1.1 है फैक्टराइजेशन है के बाद सीधे 1.2 है प्रूव दैट दिस ये सब है ही नहीं प्रूव दैट है ना और दैट रूट 5 और 3 Sir, we have to just prove that. प्रूव दैट है लेकिन ये नहीं है कि वेदर दिस नंबर इज No, टर्मिनेटिंग sir, that part is not so there. I think that part is deleted चलो ठीक है कोई नहीं क्वेश्चन नंबर तो ये तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया थर्ड क्वेश्चन बता दो कैसे करते हैं थर्ड क्वेश्चन ये है कि 0.8 का लिखो फ्रैक्शन 0.888 डॉट 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 हो जाएगा Sir, one more thing, this expanding part is also not there in NCERT. ठीक ठीक ओके x इक्वल टू 0.888 फिर तुमको क्या करना होता है इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो डेसिमल के बाद का जो पैटर्न है उसको एक बार फिर से लाना होता है तो इसलिए 10x कर दोगे तो जाएगा 8.8888 समझ में जो भी डेसिमल की बाद का पैटर्न है वो बाद दोबारा लाना होता है ठीक फिर सब्ट्रैक्ट कर दो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स नीचे वाला माइनस ऊपर वाला सो 8.888888 माइनस 0.888 so it'll be 8 जस्ट but 9x equals to it ठीक So है x is equal to 8 by 9. 9 ठीक
ये लिख लिया। कुछ कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि थोड़ा सा ट्रिकी होता है, उसमें क्या करना होता है कि तुमको एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं आएगा, 2 बार करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जितने भी पॉइंट के बाद डिजिट होते हैं उतने उतने से मल्टीप्लाई करना होता है। हाँ, So we did this last year too. 4 यहाँ पे अगर 10x करोगे तो तुम्हारा आएगा 22.44444। बट अभी भी देखो ये पैटर्न रिपीट नहीं हुआ है, तो इसलिए 100x कर दो तो आएगा 224.444। अब पैटर्न रिपीट सो होगा। बेसिकली जितने नंबर्स पे बार होता है उतने से 10 लाइक उतने जीरो से मल्टीप्लाई करना होता है, पॉइंट के बाद उतने जीरो से करना होता देखो देखो ऐसे मैंने नहीं याद किया था 10th में, मैंने ऐसे याद किया था कि फाइनली पैटर्न सेम होना चाहिए। है। ओके लाइक या अगर मैं इतना ऐसे याद करने लगता कि मतलब कितने बार से डिजिट काउंट करना वो मुश्किल है ना, बहुत दिमाग लगता है, उतना दिमाग है ही नहीं मेरे पास। क्या करना है मेरे को, बस ये पैटर्न लास्ट में देखना है सेम, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है कि डेसिमल में अगर पैटर्न सेम है तो एक्सपैंड करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ऐसे याद रखो। तो 224 माइनस 22 इज 2, यही है क्या? अरे वाह, x इज इक्वल टू 2/90। ओके, अरे सॉरी 222 202/90। ओके फाइन। सेकंड एंड लास्ट को बस 3 - 2 करेंगे, ठीक, ये डन। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ। 1C हो गया, 1D। हाँ, 1D देखो, 1D का मतलब होता है, 1D में देखो सबसे पहले लिखो क्वेश्चन नंबर 1, पाई। अच्छा, ओके, सो यू स्टार्ट रीडिंग, यू क्या नाम है, हृदय, रीड क्वेश्चन नंबर 1। Yes, sir. Define a rational number, irrational number, and real number. ओके, मैं बता देता हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन, अगर किसी चीज का डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग है, क्या है टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग मतलब एक पॉइंट के बाद वो रुक जाता है। खत्म हो जाता है, ठीक। तो फिर वो क्या है? सबसे पहले रैशनल है, ठीक है। दूसरा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो 2 बातें होती हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग, पहले यहाँ पे टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का 2 केस होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग के बाद रिपीटिंग का मतलब होता है कि सपोज ये लिखा है 0.444444 ऐसे ही है, इसलिए है 0.4 बार, तो ये खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट हो रहा है। अंडरस्टूड? ठीक है। बेसिकली यू कैन प्रिडिक्ट द डेसिमल, कि भाई कोई पूछे इसके 17th डेसिमल क्या है, तो तुम बता सकते हो क्या है डेसिमल 17 डेसिमल पॉइंट पे क्या है? 4. Or it stays the 4. same. जस्ट हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज रिपीट होती है। फॉर एग्जाम्पल 0.41403 ये रिपीट हो रहा है, तो इसमें क्या होगा? 0.403403 अभी भी अगर मैं तुमसे पूछूं इसका 17th डेसिमल प्लेस क्या है, तो तुम तब भी बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास Sir, दिमाग। 403. अबे 17 डेसिमल पे क्या है? 4 या 0 या 3 क्या है? लिख के So देखना। 0. 15 16 17, हाँ 0 है ना, क्योंकि 15 पे 3 का बनाओगे तो 15 पे खत्म हो 15 जाएगा plus ना। 2, 15 17. + 2, तो सेकंड नंबर क्या है? 0। समझ, थोड़ा देर सोचो, तुमको आ जाएगा। जब आ जाएगा तो बोल देना आगे बढ़ूंगा, वरना नहीं बढ़ूंगा। Yes, sir. नहीं आया तो भी बता देना। So like, would they give us like a more difficult version of this? Is there a more difficult version of this? नहीं, तो है ही नहीं, तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं Okay. है। अच्छा, मैंने ये कॉन्सेप्ट गलत बताया तुमको, ये नहीं है ऐसा। सुनो, ऐसा नहीं कि यू कैन प्रिडिक्ट और नॉट प्रिडिक्ट, ओके। ये कॉन्सेप्ट गलत बताया है, क्योंकि सुनो, ऐसा भी होता है, ये तो रैशनल है, लेकिन 0.41411, फिर 4111, फिर 4111, फिर 4, फिर 11111, 5 बार 1, फिर 4, फिर 6 बार 1, ये ना, ये रैशनल नहीं है, ये इरेशनल है। ऑल्दो यू कैन प्रिडिक्ट द डिजिट, ओके। सपोज मैं तुमसे बोलूंगा इसका 100 डिजिट क्या, तुम निकाल सकते हो, डिफिकल्ट होगा पर निकाल सकते हो, ओके, विदाउट Sir, हाँ। तो अगर पैटर्न है रैशनल नंबर बनेगा?
क्या? सर मोस्ट केसेस में अगर पैटर्न बनता है तो रैशनल नहीं, वही गलती है। पैटर्न इज नॉट नेसेसरली, पैटर्न नहीं जरूरी है, सेम चीज रिपीट होनी चाहिए। ये पैटर्न है ब्लू वाला, यस। हाँ सर। रेड वाला भी पैटर्न है, हाँ सर। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। रेड वाले में सेम चीज रिपीट हो रही है, हाँ ब्लू वाले में सेम चीज रिपीट नहीं हो रही। सर, तो रैशनल कैसे हो? तो रैशनल नहीं है ब्लू वाला। So then you can't turn the blue one into a fraction. नो, ब्लू इज इरेशनल एंड दिस इज रैशनल। ठीक है, ओके। Yes, you can't turn blue into a rational. You can't convert it into a fraction. If you can do it, congratulations. New fields medal for you. So, but you can't. You can't. Yeah. सर तो इरेशनल को कोई वे में लिख नहीं सकते? नहीं, इसीलिए तो irrational है। समझ में आया? ठीक है, चलो अभी, and the set of all rational plus irrational is called real number. Okay. अच्छा, इसको मैं लिख लेता हूँ, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अगर नॉन रिपीटिंग है तो फिर वो हो जाता है, तो इस केस में होता है इर्रेशनल, इर्रेशनल, और बाकी दोनों केस में क्या होता है? ये दोनों केस क्या है? रैशनल के केस है। ओके। तो 1 सेकंड में लिख रहा हूँ। So the second one, first part of 1D. रुको रुको, सारे क्वेश्चन अभी करेंगे। चल फिर दे, चलो हो जा। क्वेश्चन नंबर 2। Classify the following numbers as rational or irrational. So first should be irrational. 1 second, let me just see the questions. First should be Irrational. काय को? So pi is irrational. इसमें numbers चलते जाते हैं। बोलो 3 mistakes of my life में this is my biggest mistake। बोलो क्या सर? this is your biggest mistake। 22/7 तो लिख दिया ना फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो ये रैशनल कैसे हुआ? सर but पहले लिखो 22/7 is not equal to pi, तो लिखो, फिर लिखो 3.14 is not equal to pi। Okay, So then what is the value of pi? the value of pi is 3.14159। 59265. मुझे कुछ गूगल करना पड़ेगा इसके बाद। ठीक है, so no one knows and you can't predict। Okay, basically we have to Google। Okay, and fine, and then we don't want to Google it। Okay, so basically see the concept सुनो ध्यान से। लोगों ने सर्कल बनाया, ठीक है, सर्कल बनाया, बहुत टाइम सर्कल बना रहे थे। ठीक है, फिर लोगों ने, ये बहुत पहले हुआ है, बीसीज में हुआ है, 3000 4000 बीसीज में लोगों ने उसका डायमीटर नापा। ठीक, लोगों ने देखा कि मैं कोई भी सर्कल बनाऊं, सबको, और कोई भी सर्कल छोटा बड़ा कहीं पर भी बनाऊं, इंडिया में, पाकिस्तान में, इजिप्ट में, कहीं भी सर्कल बनाओ, किसी भी टाइम बनाओ, दिन में बनाओ, रात में बनाओ, कभी भी देखो, कितना भी बड़ा बनाओ, उन्होंने हमेशा देखा कि C/D जो है, C/D was some ratio। It was, when I found out the ratio, it was same 3.14 159 26, ये सब, right? Okay, fine। So how did they calculate C if they didn't know what pi was? No, the experimental measure, so you measure the length of C। You don't know the formula C is 2 pi r। Okay, Yeah, so then how did they you measure? don't know pi into dia, right? C is not pi into dia, you are actually taking up a scale, trying and measuring its C, the ribbon method। Okay, and ribbon method से ही D भी बना पाए। Okay, cool। When you found out the ratio, everyone found out, okay, this is the ratio is same। Okay, now the modern mathematicians, because this number is useful, it's everywhere, like because a circle is everywhere, right? So they said,
I will not call this number like, I will not say every time 3.1415926, right? So let's keep calling it pi as a short form, okay? So pi is a short form, is a symbol for this number, okay? Fine, it's just laziness. This symbol is just a laziness. Okay, we could have just skipped inventing this symbol and just keep calling this number, okay? But then this number does not end, okay? Fine, okay. Now, depending on various uses, for example, you want to just making a rangoli at your school, okay? Rangoli at your school. So, And just 1 second, I'll complete, okay? So if you are making rangoli, and for that you have to draw a circle, okay? And drawing that circle, you know the diameter. So you need to buy this. Suppose you need to cover your rangoli with red ink, okay? So you need to know, suppose for your purposes, for rangoli purposes, you need to know what is the circumference of the rangoli, okay? So therefore you need to use this formula, right? You need pi into d. Now you will use, for your convenience, you will just use 3.14 or 3.1 also. If you use, that's fine, okay? Because you're making a rangoli, thoda sa idhar udhar hoga, doesn't matter, okay? Thoda rang ka pad gaya kam, it doesn't matter, okay? Okay, but suppose some space shuttle is being sent to space, okay, and they want to calculate something, circumference of the space shuttle, okay. So they will not use, they will still use this equation, but the pi value which they use is at least till, I think they use till 20 decimal places, okay. So, but then the value will always be inaccurate, right? Yes, it is. So why use this value of pi? What is the other option? So maybe a little closer to accuracy. So instead of using 20 decimal places, let's use 30 decimal places, right? Is that what, right? Yes. Sort of. Okay. You won't use. So then in the end, it's futile. Pardon? So in the end, it doesn't matter. It'll always be inaccurate. It is always inaccurate, but your application, your your use of application, what is the purpose of application? Okay. Right. Fine. Okay. Can you use 20 decimal places for rangoli? Yes, you can use. You're free to use. Do you need to use it? Understood. Okay. Fine. So this is, so therefore, अगर कोई बोले 3 क्या पाई 3.1415 है, नहीं, ये तो नंबर तो खत्म कर दिया ना तुमने यहीं पे. अगर खत्म कर दिया तो क्या होगा? 3.1415 dot we can say. अगर कोई ऐसे बोले कि ये पूरा है तो ये पाई है, then ये irrational है. बट अगर कोई सिर्फ इतना बोले 3.14 तो ये क्या है? ये रियल नंबर है. ये सॉरी, ये रैशनल. तो वही एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ये थोड़ी दिया कि वो पाई की वैल्यू है, जस्ट नॉर्मल नंबर. तो क्या बोलना चाहिए फिर? रैशनल. रैशनल, पहला रैशनल है, दूसरा रैशनल. हाँ रैशनल. थर्ड क्या है? थर्ड वाला है रैशनल. हाँ सही. फोर्थ वाला इज रैशनल. वेरी गुड. फिफ्थ वाला और रैशनल. ठीक है. सिक्स्थ वाला रैशनल. और सुनो, एक कोई ना आंसर चेक करते रहना, ठीक है? They're asking us to prove that it's rational, so it's already given that it's rational or irrational. No, क्लासिफाई करने को बोला है. क्लासिफाई बोला. No, so but it's already given in the question. क्या बोल रहे? We are doing question number 2, okay? Oh, okay. Yeah, those. Okay. And Shivansh, you keep checking the answers, okay, of that question. Answer वाला page खोलो. Question number, Advik, part 6. Irrational. Why? Because like 5 3 5 3 3 5 we can predict, but it's like 6 मतलब रोमन में 5 और फिर okay. रोमन नंबर बोल दिया था ना मैंने, इसलिए वो भी irrational. क्या? Irrational. Very good. 7th? Irrational. Good. 8th? Irrational. ठीक है. 9th? root 21. अच्छा, रूट में अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल है, ठीक है? Irrational. परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल. लिख लो. रूट 21 क्या हुआ? Irrational. So, but then is it possible to have a root with like terminating decimals? If it is not a perfect square. No, like if it's not a perfect square. No. If it's under a root.
प्योर नंबर का नहीं है, प्योर नंबर का स्क्वायर रूट विल कैन नॉट बी. Okay. But that's a good question. I've never thought of it. Why? Pure number का square root is never rational if it is not a perfect square. I've never thought of it. Why? Good So again, question. there must be some number. So next one is like 3 to the power 1 by 3, so it should also be irrational. ठीक है. Okay. Now see how to prove that something is irrational. देखो, prove that root 2 is irrational. So ये इतना बड़ा क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए. नहीं तो और suitably तुमको चूज करके लिखना है ना लाइंस पे. बताता हूँ तुमको. सुनो ध्यान से. Prove that root 2 is irrational. लिखो जल्दी से. Prove that root 2 is irrational. लॉजिक देखो क्या होता है. इरेशनल नंबर को a by b में नहीं लिख सकते. ओके, क्या क्या कॉन्सेप्ट है. इरेशनल नंबर को a by b फॉर्म में नहीं लिख सकते. ओके, rational number को you can write in a by b form, right? Okay, right. We can't write a rational number. Sorry, we can't write an irrational number in a by b form. Okay, we can only write rational numbers in a by b forms. Okay. Where a by b are co-prime, where a and b are co-prime. Co-prime का मतलब है अगर कुछ कॉमन था तो काट दिया है. फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं 0.75 बोलूं तो इसका फ्रैक्शन क्या है. Sir, 75 by 100. वेरी गुड. ये कुछ काट सकते हैं ऊपर नीचे से. Yes, sir. 75 or 3 by 4. 3 by 4. We can divide to 25, 3 by 4. मान लो मैंने 5 डिवाइड किया तो क्या है ऊपर. Sir, 5. 5 से So 15 by 20. 15 by 20 आएगा. ठीक. और क्या क्या लिख सकते, और भी क्या है. Sir, और वापस आएगा 3 by 4. वापस 3 by 4 आ जाएगा. तो क्या बोल सकते हैं 75 by 100 और 15 by 20 और 3 by 4 ये सारा का सारा 0.75 ही है. Yes, sir. Yes, sir. के लिए को प्राइम का मतलब होता है कुछ बचा है तो काट दो. 15 by 20 है तो 15 और 20 को प्राइम नहीं है. 15 और 20 आर नॉट को प्राइम. व्हाई? बिकॉज we can still convert to 3 by 4. क्योंकि उनमें कॉमन फैक्टर है. क्या कॉमन फैक्टर है? 5. हाँ, ऐसे बेसिक रीजन बताया करो एकदम. ठीक है. Okay. तो व्हाई आर दे नॉट को प्राइम का डेफिनेशन क्या है? They should not have any common factor. वेरी गुड. तो 15 20 को प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें 5 Common factor है 5. वेरी गुड. तो अगर कॉमन फैक्टर है तो वो काट देगा तो नंबर और छोटा रिड्यूस फ्रैक्शन आ जाएगा. ठीक है. ठीक है, तो इसलिए लिखा है वेयर ए एंड बी आर को प्राइम. समझ में आ गया? व्हाट इज ओके आर्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए एंड बी आर बीइंग को प्राइम्स? So that means that A and B don't have any more common factors between them. वेरी गुड. ओके, अब देखो सपोज रूट 2 रैशनल होता है, ऐसे लिखते हैं. इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं. ओके, लेट अस से root 2 is a rational number. Therefore root 2 is a by b. Okay, where a b are co-primes. ठीक है, where a b are co-primes. ये समझ में आ गया? लिख लिया? Yeah. Yes, sir. अब फटाफट करो. 2 is equal to a square by b square. स्क्वायर कर दिया दोनों. अच्छा. Yes, sir. Therefore a square is equal to 2b square. अच्छा, इसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है, वो समझो. तो प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर प्रॉपर्टी होती है कि if a number n divides x square then it will divide x. Okay, if a number divides x square then it will divide x. For example 15 है. 15 नंबर. ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है? Sir, 225. 225. तो जैसे फॉर एग्जांपल 3 है, वो 225 को डिवाइड करता है क्या? Yes, sir. तो वो 3 अगर 225 को डिवाइड करता है यानी 15 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 15 को भी डिवाइड करो. Yes.
ठीक है, समझ में आ गया मैकेनिज्म? Yes, sir. मैकेनिज्म है, if a number n divides x square, it will also divide x. ठीक है, Yes, sir. और देखो, if a square is equal to 2 times b square, मतलब क्या है? वो बोल रहा है कि a square जो है वो 2 into something है, a square is equal to 2 times something, तो मतलब 2 क्या a square का फैक्टर है? ये सुनो, Yes, sir. if you write, 18 is 2 into 19, that means 2 is a factor of 18, right? Yes. That means 2 divides a square, yes or no? Yes, sir. This also implies अगर 2 divides a square, from this blue वाला text, 2 divides, B square. oh hello, Get this part. But How 2 does divide Two A also. divides A should divide X. divide, So I didn't get this. okay, पहले लॉजिक So how does it divide a square? देखो, अगर तुमने एक नंबर लिख दिया, मान लो एक नंबर है कि कोई नंबर है इज इक्वल टू 3 into समथिंग, Right. तो 3 उसका फैक्टर है नंबर का कि नहीं? Yeah. है ना? Yeah. अच्छा, तो a स्क्वायर जो नंबर है ना, Oh, so 2 is divided. वो 2 into समथिंग है, राइट? Yeah, so then 2 is a factor. 2 Okay. इज अ फैक्ट, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर. Yeah. और अभी जो हमने ब्लू में लिखा है कि if 2 divides a square, तो 2 divides, therefore 2 divides क्या? Square. a. A. इससे Oh, आया if यहाँ पे नंबर n क्या हो गया? 2 हो गया. 2 is divided, x क्या हो गया? a हो गया. 2 is dividing a square, n is dividing x square, so 2 will divide A. a. Everyone is getting this? Yes, If sir. 2 divides a, now understand this. यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. ध्रुवी जरा एक्सप्लेन करो शुरू से लेके यहाँ तक, क्वेश्चन से लेके यहाँ तक एक्सप्लेन करो. What are the logic we have used and what are you writing? Yeah, so the question asks us to like prove that root 2 is irrational. So we are going to first assume that root 2 is rational. So if it is rational, then root 2 can be expressed in the form a by b, where a and b are co-primes. So by squaring both sides, we get 2 is equal to a square by b square. And by taking b square to the other side, we get a square is equal to 2. We can say that a square divides, 2 divides a square. So if a number is prime and it divides a square, then it will divide a. That's a property. So it's given that 2, so we found out that 2 divides a square. So from that law, we can tell that 2 divides a. Okay. Now, the second leg of the problem is, second leg of the question is, if 2 divides a, then you can write 2 is equal to a into something, into some number, right? So 2 is a factor of it. We'll write that. 2 divides, sorry, a, you can write a is 2 into something, right? Yeah. So let's say a equal to 2c, you can write, okay? C is some number, okay? Fine. Are you guys getting this? Yes or no? Yes, So sir. we did this in class, but at that time I didn't understand it. Like she just made us write proof. Hey, useful information बताया करो. उस दिन मैंने जीवितेश को बोला था ना. Okay. A is 2c or something which we learn something new from it, okay? Yeah, actually, she just told to mark it up. फिर वही Sir, it's like you can level. स्टेटमेंट ए प्राइम बोल दिया उसने, है ना, ए डैश बोल दिया, उसी के फॉर्म का दूसरा इटैलिक्स में दूसरा स्टेटमेंट. ए इक्वल टू 2c डालोगे, यहाँ पे डालोगे. अब देखो a इक्वल टू 2c है ना, बिकॉज
if 2 divides a, then a can be written as 2c. यहाँ स्क्वायर वाले में डाल दो तो आएगा 2c But then it will divide C also. इक्वल टू 2b स्क्वायर. तो ये इसको काटोगे यहाँ पे 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर. ये 2 कटेगा, you'll get b square, very important. You'll get b square is equal to 2c square, very important. Okay. यहाँ से क्या आया, b square equal to 2c square. यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि 2 divides, hello, Sir, So 2 2 divides divides C A also. and B. c नहीं बेटा, b square is equal to 2 A times 2 divides divides B. B also. 2 divides b square. Therefore, 2 2 divides divides B B also. also. Therefore 2 divides b. So Therefore here we are saying 2 divides B square, like क्या, because यहाँ आपने कहा कि 2 divides B square. So is it that proof which we proved earlier? क्या is that which what? So this part is only now I'm not getting. B square equals to C. Then how we say it's 2 divides B square? अच्छा, जब ये लिखा था, ये देखना ध्यान से, हाँ, जब ये येलो में लिखा था, ये येलो वाली लाइन लिखी थी a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, उसके बाद ये वाली लिखी थी, तब ये इसको एक्सप्लेन करो जरा, क्या है, क्या मतलब है इसका? It's saying A square equals to 2 into B square. So this one it says that 2 divides A square, so it will divide to A नहीं नहीं, also. बस वहीं तक, उसके आगे मत जाओ, बस वही बताओ, सेकंड लाइन कैसे, सेकंड येलो लाइन कैसे लिखी, क्यों लिखी? फर्स्ट येलो लाइन से सेकंड येलो लाइन मुझे समझाओ, एकदम बच्चे की तरह, इसमें बच्चा हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे समझाओ. मैं बताऊं. नहीं नहीं नहीं, उनको तो आ गया है, इसको नहीं है, उसको बोल रहा हूँ. A square is 2B square. So is it like we take 2 to the other side and do it? नहीं, बहुत इजी है. You are writing left side, a square is left side, okay? Yeah. Is equal to 2 into some b square को मान लो कुछ है, ठीक है? Oh, okay. ऐसे समझो कि ऐसे लिखा है x is equal to 2 times y. तो क्या 2x का फैक्टर है कि नहीं? हाँ सर है. है कि नहीं? हाँ? Because x can be written as 2 into something, right? Yeah, okay. Okay, I get it now. अभी समझ में आ गया why have we written here from here to here? Yeah, sir. Because 2 is just multiplied into some number and it's a factor of b. अभी देख लो, तुमको दो स्टूडेंट मिल चुके हैं, 2 divides a, 2 divides b, यानी a और b का कॉमन फैक्टर है 2, राइट? लेकिन शुरू में बोला था कि they are a by b and a b are co-prime, ये बोला था ना, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट अभी निकाल दिया, 2 कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन हो गया. क्या हो गया? कॉन्ट्रडिक्शन. ओके, तुमको बोला गया पढ़ाई करो, तुमने नहीं करी, तुमने मैं नहीं करूंगा पढ़ाई, I'll instead watch anime. This is contradiction. Okay, this is contradiction. So therefore our assumption is wrong. Let us say that root 2 is irrational. This assumption was wrong. Okay. So I didn't get this part as well. क्या? Which part? The final part. How is it a contradiction? एक यहाँ पे जो तो देखो, सबसे पहले ना सब लोग बोलते हैं रूट 2 इरेशनल है, ठीक है? क्या बोलते हैं? सब लोग बोलते हैं रूट 2 इरेशनल है, लेकिन मैं नहीं मानता. ओके, तो मैं बोलता हूँ, मैंने अज्यूम किया कि रूट 2 रैशनल है, ठीक? अगर मैंने अज्यूम किया, ये मेरा assumption है, ठीक? अगर if I have assumed this, I can write root 2 as a by b, where a and b are co-primes. Okay, if this assumption stands true, then root 2 may be a rational number also. Right. Okay, But it can't be both. right? But now I just proved that if root 2 was a by b and a by b are co-primes, then this case is not possible, because I show that a and b are not co-primes. They have a common factor, right? Right. Yeah. So my assumption was wrong. No, but like, aren't we proving that, like, so if b can also be divided by 2 and a can also be divided by 2, then you can like further simplify a and b, right? Correct. Okay. So then won't you eventually reach a number that like would be co-primes? Very good. Correct. Very good.
But while you're making this argument, you're already imagining this in your head that it was in the form of a by b. So we're assuming it as a by b. Yeah, it isn't. See, my assumption is that it is see. Okay, listen. My assumption is root 2 is in the form of a by b, okay? Yeah. If there are some common factors, I'm canceling them, okay? Okay. Okay, let's not go to a by b. My assumption is root 2 was x by y, okay? X by y, right. Yes. Okay. If there are some common factors, I'm canceling it, okay? Okay. After canceling, I'm getting a by b. So, but then maybe you need to cancel it further. Okay, do you understand? Do you realize that there is a last limit to which you can cancel? Yeah, but right? I'm reaching that last limit. okay, right. Okay, and then this I'm calling that a by b. Understood? Yeah. Now my a and b should be co-primes. But they're not, because you can divide them by 2. You're right, understood. But very good question, very good counter question. Okay. Okay. Right. Okay. So everyone has understood this? ठीक है, सुनो, अब अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क का आता है, मतलब 5 यानी 4 का मार्क्स का आता है, तो आपको पूरा लिखना है, ठीक? सर जैसे वो 3 + 2 + √3 प्रूफ करने वाला आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ। नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ कि वो 2 मार्क का आता है, ये 4 मार्क का आता है। कोई भी 2 मार्क का आता है, 5 मार्क का आता है। सुनो मेरी बात, अगर ये क्वेश्चन पूरा 4 मार्क का आया, सुनो पहले पूरा सुन लो, क्वेश्चन 4 मार्क का आया, आपको पूरा ये पूरा जितना लिखा है पूरा लिखना है, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क का आया, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, बस इतना 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 लिखना है, √2 = a² / b² लिख दो, फिर डायरेक्टली ये स्टेप लिख दो, फिर डायरेक्टली ये स्टेप्स लिख दो। टू बात है, वो एक्चुअली कलर तो दिख नहीं रहा ना तुमको। एक्चुअली सारे ही लिखना पड़ेगा फिर भी। देखो 2 मार्क के लिए भी ये बहुत ज्यादा नहीं है, एक क्वेश्चन तो 2 मार्क के लिए ज्यादा है, तो कोई बात नहीं। सर 2 मार्क के लिए तो लाइक वी हैव टू गिव प्रॉपर स्टेटमेंट्स की वो जो भी है। 4 के लिए जैसे एनसीईआरटी में दिया, एनसीईआरटी में जैसे दिया वैसे एक बार लिख लेना, यहाँ मेरे से मत लिखना, मैंने लॉजिक बताया तुमको, ठीक है? सो सेम चीज है, बस थोड़ी स्टेटमेंट्स और ज्यादा थोड़ा और हेंस इफ देयरफॉर ये सब ज्यादा लिखा होगा, ठीक? वो लिखना है 4 मार्क के लिए। दूसरी बात, अगर 2 मार्क के लिए आएगा तो भी वो सारे बड़े बड़े स्टेटमेंट लिखना, पर जितना मैंने मिनिमम लिखा है, तुमको ये ब्लू वाला लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? अगर 2 मार्क के लिए आ रहा है तो ये लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन ओमिट दिस, ठीक? अब दूसरी बात सुनो, ये समझ में आ गया सबको? अपने आप काटना है छोड़ना है, लेकिन फिर भी एक, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है जिसमें ज्यादा लिखना है, तो लिख दो, ठीक है? फाइन। अच्छा, दूसरी चीज है कि अगर एक क्वेश्चन आते हैं, प्रूव दैट 6 + √2 इज इरेशनल, ओके? तो उसमें क्या करना है, उसमें पहले से लेके चलना है कि वी नो दैट √2 इज इरेशनल, ओके? वी नो दैट √2 इज इरेशनल, फिर देन यू विल राइट because rational plus a irrational plus a rational will give you irrational, therefore 6 + √2 is irrational। ये सिर्फ 2 मार्क का ही आएगा, ठीक है? अंडरस्टूड? अगर ये 4 का आ गया तो इसमें √2 भी इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा, ओके? तो कॉमन सेंस लगाओ, जैसे क्वेश्चन है उस हिसाब से आंसर लिखना होता है, ओके? फाइन। अगर प्रूव दैट 6 + √2 इज इरेशनल 2 मार्क का आया, तो सीधे बोलो वी नो दैट √2 इज इरेशनल एंड बिकॉज रैशनल प्लस इरेशनल इज इरेशनल, therefore 6 + √2 इज इरेशनल, ओके? बस 2 लाइन लिख दो, हो गया, कूल। अगर 4 या ज्यादा मार्क का आया, पूरा प्रूव करो शुरू से लेके, बिकॉज √2 इज इरेशनल एंड therefore 6 + √2 इज इरेशनल, ओके? अंडरस्टूड? किसी को डाउट है? आई थिंक अगर ये वाला 4 मार्क्स में आता है बाय चांस, तो ये वाला, हाँ, क्योंकि मेरे पास मेरे को प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन मैम ने दिखाया था स्कूल में, उसमें ऑलरेडी मेंशन था कि टेक रूट टू इरेशनल क्वेश्चन के अंदर ही, और वो 2 मार्क का था। हाँ तो बस फिर ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। 6 + √2 = a by b, so नहीं, अच्छा So वो rational plus rational will be always rational. Rational. तो लाइफ इज इजी, लिखते रहो फटाफट, ठीक है? Rational. लिखते रहो। प्लस माइनस मल्टीप्लाई, वैसे यार यही काम करना इरेशनल के साथ, इरेशनल 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 इरेशनल
irrational, irrational, irrational. फिर लिखना है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके चलो अब मजा आएगा। बताओ बेटा। रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल, पहले रैशनल चार तो माइनस। इजी है ना? हाँ, पहले चार तो इजी है ना? Yeah, हाँ, rational. All of them are rational. अभी सोच के दूसरा वाला नेक्स्ट चार बताओ। So a rational plus a rational need not be irrational, right? So like for example, you have um, the rational plus irrational would be, I mean, it need not be irrational, right? Yeah. So like, Rational oblique irrational, it could be both. Okay. Sir, like how will it be rational? देखो अगर जैसे √3 + √5 कर दिए, ये √3 और हाँ, √3, तो क्या आया? तो आंसर क्या आ रहा है? sir, √8. अबे ओ राम, Sorry. हाँ मारने की मन कर रहा था। अब आज डंडा छोटा तो मजा आता। √3 + √5 बोल रहा है √8। √8 नहीं है, ठीक है, समझ में? पर इरेशनल है जो भी है। ओके Yes. ठीक, बट इसको देखना, क्या ये इरेशनल नंबर है? yeah, it is. और क्या ये भी रैशनल नंबर है? Oh yeah, it is. But if you add them, like the answer will be 10. रैशनल। ओके 10 आएगा आंसर। फाइन। वैसे ही इस केस में सारे में यही है, सारे में यही है, ठीक है। और योर होमवर्क इज टू कम अप विद एग्जांपल्स। ओके योर होमवर्क इज टू कम अप विद एग्जांपल्स। फाइन। irrational plus minus multiply and divide into rational. So if you're doing this, then you'll always get irrational. Impurity with purity will always give you impurity. Impurity mixed with impurity might give you anything. Purity with impurity, purity with purity will give you purity. First is purity with purity will give you purity. ठीक है। Impurity with impurity will give you, can give you impurity, anything, can give you anything. Okay. तो प्लस माइनस डिवाइड हर में इरेशनल को जब करते हैं तो मे और मे नॉट आएगा ना, किसमें? से बाय प्लस के, जैसे इरेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल होता है। नहीं, रैशनल भी हो सकता है ना। हाँ, सो इन सब में मे नॉट होता है, मे बी और मे नॉट। हाँ यहाँ पे मे और मे रैशनल बोथ बोथ आंसर है, ठीक है। ठीक है। इररेशनल के साथ मिक्सअप करोगे अगर चीजों को, प्योरिटी विद इम्प्योरिटी, तो फिर आएगी इम्प्योरिटी पक्का। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट इज, ठीक है, दिस इज, आई मीन सो देयरफॉर 6 + √2 शुड बी 6 क्या है? रैशनल। √2 क्या है? रैशनल। सो इट विल ऑलवेज बी रैशनल। ओके Yes, sir. ठीक है। आई थिंक दिस इज इनफ। You guys, the homework is 1B, 1C, 1D. Okay. वन सी तो Sir, हमने कर ही लिया क्लास में, तो उसको करना है। 1C मत करो, 1D कर लो। ठीक। sir, it is 1B and 1D. 1B and 1D, yes. ठीक है।